Great, everyone. So we'll begin with our next session. Dr. Pramod Kumar Julka, he needs no introduction. He's a distinguished medical oncologist with 40 years of experience and performing first peripheral blood stem cell transplant following high-dose chemotherapy in metastatic breast cancer in India. He has marked a significant milestone in the history of cancer. He is a Padma Shri-awardee and a Lifetime Achievement Award from the Association of Radiation Oncologists of India, an honorary member of the American Society of Clinical Oncology. He has published over 250 articles in national and international peer-reviewed journals. Dr. Julka has also authored a book titled Becoming a Successful Clinical Trial Investigator, further showcasing his commitment to advancing oncological knowledge and practice. And we are very fortunate that on this World Cancer Day, today we have been joined by Dr. Julka. As you all know that we are doing a campaign on this World Cancer Day, which is called 1 Lakh Lives Impact Campaign, where we are providing free onco nutrition program to 1 lakh cancer patients and their families. And उसी program का एक part है कि हम webinar series कर रहे हैं with the leading experts of oncology of our country. And no wonder Dr. Julka is a pioneer in this. So thank you so much, Doctor, for joining us, and it's a pleasure. Thank you very much. I think let me first introduce myself, that I have been Dean of AIIMS, New Delhi. And as Dean of AIIMS, I was part of the National Cancer Control Program. And my more than 45 years of experience in cancer management and teaching the doctors for more than 30 years in AIIMS and being Dean of AIIMS. So I was in charge of Delhi Cancer Registry. Now let me give you a brief on this World Cancer Day. Why do we celebrate World Cancer Day? People may not be knowing this, that we celebrate this World Cancer Day on 4th of February because there was a conference held against cancer in Paris on 4th February 1999. And since then, we have been celebrating this World Cancer Day. Now the theme is Close the Care Gap. Everyone should get access to cancer care. What I mean to say that everybody, every cancer patient should be treated, and should have access to the facilities, whether government or private, because I have been in government all through my life, AIIMS, and now I am with Max. I'm the director of Max, now Oncology. And here also we are practicing oncology, same way as I was doing in AIIMS. And I don't feel that I'm in a private center. I feel as still at AIIMS. And now what I mean to say that everybody should get access to healthcare. And let me tell you, the National Cancer Registry figures, please don't get horrified by these figures, because they say that about 15 lakh new cancer cases occur every year in India. That means that 1 in 9 persons might get cancer. So you have to be cautious about that. And I'll tell you how to prevent cancer. Prevention is better than cure, as we always say. Right. And out of these 15 lakh, we always say 40 to 50% are tobacco related. So whether it is a smoking tobacco or smokeless tobacco, they are related to that. And the others are related to your alcohol also. It is alcohol with smoking. Is we always say, in Hindi we say sone pe suhaga, but I'd say ek karela dusra neem chada, So it is a synergistic effect. So I always say, please avoid all this. And hookah parlors are being opened, so they also mix alcohol sometimes in that. So try to avoid tobacco in any form, whether it is smokeless tobacco or
smoking tobacco. And then we have lifestyle, the cancer, we call it a lifestyle disease. Sedentary habits. Sedentary habits means that you don't do exercise at all. You are just sitting at home and watching TV and then going to office, doing the office work. You are sitting all the time and no exercise at all. And this is one of the cause of obesity. Obesity can lead to cancer of the breast, cancer of the ovary. So all these cancers are related to sedentary lifestyle. So let me tell you that in females, the commonest cancer is breast cancer, which we see about in a day, every day 10 cases, 10 to 12 cases of breast cancer. And next is cervical cancer, cancer of the uterine cervix. So cervix cancer, last month was cervical cancer month, as you must be knowing. So we were trying to, promote against this cervical cancer. And let me tell you, in males, it is lung cancer, head and neck cancer are very common, again, due to tobacco smoking. So all these cancers, if we avoid tobacco, we can avoid most of the cancers. And then air pollution adds to this. So air pollution with smoking, with alcohol, all these are factors which can be prevented. And we call it a primary prevention, that you prevent the factors which cause cancer. And second is secondary prevention. Secondary prevention, we mean that early detection of breast cancer, because most of the patients come to us, a lump in the breast. It was not paining, so I didn't go to the doctor. So painless lump is a lump which is cancerous, which could be cancerous. So always, whenever you find a lump or discharge from the nipple or any lump in the axilla means armpit, so you must go to your doctor. Or any unusual bleeding or discharge from any part of the body, you must go to your doctor. Change in bowel habits, you go to your doctor, must check up. In India, what we feel that I will not get cancer and others might get it. So that feeling should not be there. Anybody can get cancer right from the childhood, because in AIMS, once I treated a patient, a 6-year-old, and I saw that patient, same patient, the other day at Max, and I was surprised to see that he's now, 40 plus, and he's all right, brain tumor patient. So what I mean to say that cancer can occur at any age, cancer can occur to anybody, and as I told, 1 in 9 persons, according to our registry figures, because I was in charge of Delhi Cancer Registry while at AIMS. So there we used to always say, and I teach my patients' relatives also. The patients keep on saying that you have started teaching us also. I said, I'm not teaching you, I'm teaching because you are in the habit of teaching. So after so many years of teaching experience, 40 years, more than 45 years. So I always say that I try to teach you in a simple way that how you can prevent cancer. And I tell the relatives also not to smoke. Right. So basically, lifestyle habits, not following sedentary habits, all these things, cancer is a lifestyle disease. And people say that if your first degree relatives, mother or mother's relatives or father's relatives have cancer, you might get it. So this is less than 10%, familial cancer, hereditary cancers. So we have certain genes like BRCA1, BRCA2, and other BRCA. These are breast cancer genes. And these genes might, lead to cancer of the breast or cancer of the other organs. So what I mean to say that this is less than 10% of the cases. But
majority of the cases are lifestyle disease, and we can prevent it. And please don't feel shy to go to a doctor whenever you have any symptoms which are, which I told you earlier, unusual bleeding or discharge, or you have a loss of appetite, loss of weight, unusual loss of weight, and change in voice. All these features, when you have or lump in the breast or lump anywhere in the body, you must go to your doctor or any physician or surgeon you can contact, or your gynecologist, and then get it rectified that it is not cancer. Thank you. Thank you so much, doctor, for sharing your insights on how to prevent cancer. So, डॉक्टर मैं हिंदी में थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगी जो डॉक्टर ने अभी शेयर किया है. तो हम लोगों को अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहिए जिससे कैंसर के Yes. होने की और रिकरेंस होने के चांसेस भी हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं. जिसमें वीक में 150 मिनट्स एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, एक अच्छा खाना खाना, प्रॉपरली नींद लेना, एक्सरसाइज करना एंड स्मोकिंग नहीं करना, अल्कोहल का कंजम्पशन रिड्यूस करना, और भी काफी सारी चीजें जो डॉक्टर ने बताया कि जिन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए. और कहीं पे भी हमारे बॉडी में अगर हमें कुछ भी अनयूजुअल सा लगता है, बाउल हैबिट्स चेंज हो गई है, वेट लॉस, वेट गेन सडनली, कुछ भी लगता है जो कि आपके लिए नॉर्मल नहीं है, तो आपको अपने डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना चाहिए. थैंक यू डॉक्टर. एंड डॉक्टर, एक रिक्वेस्ट है कि हम इस सेशन को अगर हिंदी में भी कर सकते हैं तो ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा. थैंक यू. एंड बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में कर सकते हैं. एक्चुअली आई डिडंट नो कि इंग्लिश में करना है. थैंक यू डॉक्टर. थैंक यू. हिंदी में भी कर कर सकते हैं कि राइट. हम ये कहना चाहते हैं कि कैंसर जो है इज नॉट ए डेथ वारंट. मतलब कैंसर का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो रही है. कैंसर भी क्योरेबल है, बट अगर जल्दी डिटेक्शन हो जाए. जल्दी डिटेक्शन कैसे होगा कि आप अगर शुरू में ही पकड़ लें कि आपको कोई भी बीमारी है, आपके बावल हैबिट्स चेंज हो गए हैं. बावल हैबिट्स का मतलब आप स्टूल एक बार 2 बार जाते हैं सुबह, और नहीं तो आपको लूज मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, या कोई और सिम्टम है, तो आप अवश्य जाके डॉक्टर को दिखाएं, सो दैट डॉक्टर जांच करेगा कि आपको क्या बीमारी है. ये जरूरी नहीं है कि कैंसर ही हो सकता है, पर कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं, या आपको कहीं से भी खून का आना. अब जैसे मेंसेस में तो खून आता ही है फीमेल्स को, तो लेकिन मेंसेस के बीच में खून आना, मतलब जब मेंसेस खत्म हो जाए या मीनोपॉज के बाद खून आना, तो आप डॉक्टर को अवश्य दिखाएं, कि जिससे कि डॉक्टर देख सकता है कि इसमें कहीं कैंसर तो नहीं है. मैं ये नहीं कहता, आपको डरा नहीं रहा कि कैंसर हो सकता है, लेकिन आप अपनी जीवन शैली को स्वस्थ रखें, कि जैसे आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करें. सेडेंट्री हैबिट्स जिसको मैं अभी बता रहा था कि आप बिल्कुल एक्सरसाइज ना करें, मोटापा गेन करें, क्योंकि मोटापे से भी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, जो कि बहुत कॉमन है आजकल. और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि मैं पहले नहीं बता पाया, कि कैंसर जो है आजकल हम यंगर एज ग्रुप में देख रहे हैं. यंगर एज ग्रुप मतलब जो जैसे कोलोरेक्टल कैंसर. अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसमें अमेरिका में अगर 40 साल की उम्र में आप कोलोनोस्कोपी ना कराओ. कोलोनोस्कोपी मतलब जो अंदर से डाल के, ट्यूब डाल के देखते हैं लैट्रिन के रास्ते में कि अंदर कोई कैंसर तो नहीं है, तो कोलोनोस्कोपी ना कराओ तो आपको प्रमोशन नहीं मिलती. ये अमेरिका का रूल है. तो ये इंडिया में भी कंपलसरी कर देना चाहिए, क्योंकि कोलोरेक्टल कैंसर जो बड़ी आंत का कैंसर है वो भी अब ज्यादा होने लगे हैं. और यंग 33-year-old बॉय के, क्योंकि एक होता है लिंच सिंड्रोम. लिंच सिंड्रोम का मतलब है कि वो फैमिली में भी हो सकता है, औरों को भी हो सकता है. उसमें बच्चेदानी का कैंसर भी हो सकता है, और उसमें ये कोलन का कैंसर भी हो सकता है. तो इसलिए आपको ये देखना है
कि कोई भी आप में जैसे चेंज इन बाउल हैबिट्स हो गया, ब्लीडिंग हो गया, कहीं से खून आना हो गया, या आपको भूख नहीं लग रही, या आपका वजन कम हो रहा है और आपको पता नहीं क्यों कम हो रहा है, तो आप खाना ठीक खा रहे हैं फिर भी वजन कम हो रहा है, और आपके कहीं शरीर में गांठ हो गई, जैसे स्तन में गांठ हो गई या बगल में गांठ हो गई, तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। क्योंकि आप ये नहीं करें कि उसको अवॉइड करें कि पेन होगा तभी जाएं। इवन डॉक्टर्स को भी हम देखते हैं कि वो भी सोचते हैं अवॉइड करो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। आजकल टाइम किसी के पास भी नहीं है, सब अपने लिए किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन और चीजों के लिए टाइम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपनी सेहत का ध्यान खुद ही रखना चाहिए। और आपको अगर कोई भी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के साइंस में बता रहा था कि कहीं भी गांठ हो जो कि जिसमें दर्द ना हो रहा हो, निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा हो, और निप्पल से खून आना शुरू हो जाए, और आपके बगल में गांठ हो जाए, गर्दन में गांठ हो जाए, तो आप अवश्य डॉक्टर को दिखाएं। ये नहीं कि हर गांठ कैंसर होती है, तो ये अवश्य डॉक्टर को दिखाएं। तो और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ये कैंसर है या नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप इसकी अर्ली डिटेक्शन, जैसे मैंने आपको कहा, दो तरह के प्रिवेंशन होते हैं। एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन जैसा मैंने आपको कहा कि वो चीज करें ना जिससे कैंसर हो। अब एयर पोल्यूशन को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो है ही, लेकिन हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं? हम टोबैको कंट्रोल कर सकते हैं। टोबैको कंट्रोल का मतलब तंबाकू का सेवन बंद कर दें, कम कर दें नहीं, बंद कर दें, बिल्कुल बंद। और तंबाकू का सेवन करने से 40% कैंसर हो सकते हैं। हमारे देश में जो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री फिगर्स हैं, जो मैं बता रहा था, 15 लाख न्यू कैंसर केसेस होते हैं और 9 में से एक को कैंसर होने की संभावना है। हर 9 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना है। तो उसमें से जो हम 15 लाख केसेस कह रहे हैं, उसमें से आधे जो है 40% या 50% जो है वो तंबाकू के सेवन से और अल्कोहल के सेवन से। अल्कोहल, शराब को पीना बंद करें, और तंबाकू का सेवन किसी प्रकार से, जैसे बीड़ी, सिगरेट, और जो स्मोकलेस टोबैको है, पान मसाला, जैसे जर्दा, खैनी, ये सब अवॉइड करें। तो जब आप ये अवॉइड करेंगे, नहीं खाएंगे, तो आप अपना प्राइमरी प्रिवेंशन तो आपका हो ही गया कि कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ये नहीं कि जीरो हो जाएगी, क्योंकि एयर पोल्यूशन तो बहुत है। एयर पोल्यूशन का मतलब कि हम नहीं भी स्मोक करते तब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम उतनी सिगरेट का धुआं पी लेते हैं। तो इसलिए ये कहना जरूरी है कि प्राइमरी प्रिवेंशन करें, और उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन कैसे करेंगे? जैसे फीमेल्स में हम ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करें, और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम एंकरेज करते हैं। इसका मतलब कि 20 साल पहले हम कहते थे 40 साल से ऊपर, लेकिन आजकल हम कहते हैं 20 साल से ऊपर, क्योंकि हम यंगेस्ट गर्ल जो हमने देखी है विद ब्रेस्ट कैंसर 19 ईयर ओल्ड। तो 20 साल की उम्र के ऊपर आपको, 20 साल से 30 साल तक आप जब नहाते हैं तो राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट और लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट को देखें। कोई भी गांठ हो ब्रेस्ट में या बगल में, उसको 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, खुद ही देखें, सेल्फ एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई शक है तो आप अवश्य डॉक्टर को जाके दिखा सकते हैं। और उसमें लेकिन मैमोग्राम नहीं कराना, क्योंकि लोग मैमोग्राम सीधा भागते हैं कि मैमोग्राम कराएं, कुछ है तो नहीं। मैमोग्राम हम 40 साल से ऊपर की उम्र को कहते हैं मैमोग्राम कराने के लिए। मैमोग्राम होता है एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट। तो उससे पहले हम अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट कराते हैं, और अगर शक हो, 30 से 40 साल की उम्र में अगर शक है कि कोई गांठ है, वो कैंसर तो नहीं है, तो हम उसका एमआरआई भी करा सकते हैं। तो
मैमोग्राम हम अवॉइड करते हैं जब तक 40 साल की महिला नहीं हो जाती। तो 40 से ऊपर हम मैमोग्राम रिकमेंड करते हैं कि आप, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो आप अवश्य मैमोग्राम कराएं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी कहती है कि हर साल कराएं, लेकिन हम कहते हैं 1 in 2 years या 3 years करा सकते हैं मैमोग्राम। और उसमें अगर कोई शक है तो एमआरआई भी करा सकते हैं। आजकल टोमोसिंथेसिस आ गया है। टोमोसिंथेसिस का मतलब जैसे सीटी स्कैन करते हैं, उससे भी हम पकड़ लेते हैं छोटा से छोटा लंप। हमने 7 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर लंप भी पकड़ा है, और क्लिनिकली पकड़ा है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम शुरू से, क्योंकि पहले टीचिंग हमारे टाइम में ये होती थी क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज अ मस्ट। तो हम आजकल के बच्चे को हम सिखाते हैं कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन को छोड़ो मत, क्योंकि ये नहीं कि सबका एमआरआई सीटी कराते रहो। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा इधर। मैं यूएस में था, एमडी एंडरसन में। एमडी एंडरसन इज अ बिग कैंसर सेंटर। तो उसमें वो ये कहते थे कि आप कोई ना कोई लंप निकाल दोगे ब्रेस्ट में। तो मैं उनको ये कहता था कि हमारे हाथ ही एमआरआई तो आप एमआरआई कराओ, सीटी कराओ, वो कराओ। हम क्लिनिकली आपको बता देंगे कि एक्जिला में गांठ है या नहीं है, लंप है या नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने से ही आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि आप, और उसमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा। तो आप शाई फील ना करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं, बेशक फैमिली डॉक्टर को दिखा लें, जनरल फिजिशियन को दिखा लें, और या अगर आपको फिर भी शक है तो कैंसर के अस्पताल में दिखा सकते थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया कि हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपने सही बताया, इंडिया में मैक्सिमम लोग लेट स्टेज में डायग्नोस होते हैं, स्टेज 3 स्टेज 4 में, और इसमें भी रिकरेंस 70% लोगों में वापस रिकरेंस आता है। सो प्रिवेंशन इज हैं। द क्योर। आई रियली लाइक जब आपने शुरुआत में बोला कि प्रिवेंशन इज द क्योर, और हमें इस कोशिश करना है कि हम पहले ही अच्छी लाइफस्टाइल रख के और सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करके कैंसर को प्रिवेंट करें। Doctor, as we have the topic role of onco nutrition and holistic approaches in cancer, and हाँ जी। I am very इंस्पायर्ड बाय योर लिंक्डइन पोस्ट, जहाँ पे आप इतनी अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, गट माइक्रोबायोम के बारे में, और कैसे वो बॉडी को अंदर से हील करता है। आई विल रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर थॉट्स विद एवरीबॉडी टुडे, जहाँ पे लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस पता चले। एंड आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी इसी को लिंक करते हुए इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी से, कि आपके जो इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी के बारे में क्या थॉट्स हैं, आपने पेशेंट्स किस तरह के क्वेश्चंस लेके आते हैं, वो क्या चीजें करते हैं जो उन्हें हेल्प करती है, और आपके पर्सनल व्यूज उसके ऊपर। थैंक यू। हाँ, पेशेंट्स हमें पूछते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो हम उनको हमेशा कहते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट खाइए, जिससे कि आपको न्यूट्रिशन मिले और आपकी इम्यूनिटी बढ़े। और कई लोग कहते हैं हम नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, तो ये जरूरी नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन खाना है। वेजिटेरियन में भी चॉइसेस हैं, जैसे पनीर है, आप पनीर खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, हरी सब्जियां। तो आपका जो गट है, गट में भी बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और खराब बैक्टीरिया भी होते हैं। तो आपको अच्छे बैक्टीरिया को और मजबूत करना है और खराब बैक्टीरिया को खत्म करना है। तो उससे जरूरी नहीं, अब जैसे आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स में दोनों टाइप के बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रोबायोटिक्स बीच में दे देते हैं। प्रोबायोटिक्स का मतलब हम कहते हैं दही खाओ ज्यादा, दही में प्रोबायोटिक होता है। तो उसमें हम कईयों को ये सब गोल भी दे देते हैं खाने के लिए, कि उससे आपका कॉन्स्टिपेशन अवॉइड हो जाती है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि अपनी जो जीवन शैली है उसको, खाने पीने का भी ध्यान रखें, क्योंकि खाना पीना उतना ही इम्पोर्टेंट है हमेशा। आई ऑलवेज ले स्ट्रेस ऑन न्यूट्रिशन, इसलिए क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ डाइट और एक्सरसाइज, ये दो चीजें हैं जो कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि हाई प्रोटीन डाइट लें और अपना ख्याल रखें। नॉन वेजिटेरियन लेना कोई ज़रूरी नहीं है, वेजिटेरियन लें। वेजिटेरियन में भी हाई प्रोटीन्स हैं। अच्छा, जो लोग बिल्कुल ही स्टेज 4 में हैं, एडवांस स्टेजेस में है, उनको हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स दे देते हैं। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी आजकल अवेलेबल हैं, बहुत तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जिनको हम दे देते हैं और वो काफ़ी उनको फर्क पड़ता है और वो कहते हैं जी हम अब ठीक हो गए। और हम ये भी देखते हैं कि जो मरीज चल भी नहीं सकता उसको बुला के हम सपोर्टिव केयर करते हैं। सपोर्टिव केयर का मतलब इंट्रावीनस फ्लूइड्स दे देते हैं, इंट्रावीनस मल्टीवाइट दे देते हैं, इंट्रावीनस पेंटोसिड और ऐसी दवाइयां दे देते हैं जिससे उनको उनका हाजमा ठीक हो जाए और अच्छी तरह खा पी सके। तो उनको खाने पीने का ज्यादा जोर देते हैं हम बनस्पत की दवाइयों पे। तो हम कहते हैं दवाइयां तो लेनी है लेकिन खाना पीना आपका इम्पोर्टेंट है। और डाइट एंड एक्सरसाइज जो मैंने बताया ये बहुत जरूरी है। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर। डाइट और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक हेल्दी सर्कल होता है। सो ईटिंग वेल, मूविंग मोर, मैनेजिंग स्ट्रेस, स्लीपिंग वेल, क्रिएटिंग हीलिंग एनवायरनमेंट, शेयरिंग लव एंड सपोर्ट एंड फाइंडिंग पर्पस ऑफ लाइफ। सो कोई भी एक अच्छी हेल्दी हैबिट हम लेके पिक इट एंड स्टिक टू इट और उसको बस फॉलो करना है और धीरे धीरे हम अपने आप से उस हेल्दी सर्कल में आ जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर फॉर स्ट्रेसिंग ऑन इट मोर। वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द चैट, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम एक दो क्वेश्चंस ले सकते हैं। हाँ जी। यस डॉक्टर, थैंक यू। राइट, क्वेश्चन है, मैंने आई हैव बीन completed my treatment more than 2 months, but I still have not got my periods and my weight is been increased from 62 to 70 kgs. I'm regular in diet and lifestyle, but unable to lose weight and get my periods regularly. हाँ जी, आपको कौन सा विच कैंसर डिड यू हैव? Breast cancer. ब्रेस्ट कैंसर, यस। ब्रेस्ट कैंसर में ये होता है कई बार ना, आप ट्रीटमेंट खत्म कर लें उसके बाद उतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते क्योंकि आप वीकनेस होती है। तो उसमें आप अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखें कि हम हमेशा कहते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो अच्छी खाएं, हाई प्रोटीन डाइट खाएं जिससे उससे वेट नहीं बढ़ता, और एक्सरसाइज करते रहें। एक्सरसाइज मतलब मैं तो सिंपल एक्सरसाइज कहता हूँ कि वॉकिंग जो है फॉर हाफ एन आवर, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी कहती है 40 मिनट्स। 40 मिनट्स या हाफ एन आवर मिनिमम एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, और ब्रिस्क वॉकिंग करें तो और अच्छा है। और उससे आप वेट लूज करने की कोशिश करें, लेकिन कोई दवाइयाँ मत लें प्लीज, फॉर हेवन सेक। देसी दवाइयाँ जो लोग लेते हैं, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी आयुर्वेदिक और homeopathic pathy, I am not against that. Please don't misunderstand. But I always say natural way से आप अपना ध्यान रखें कि जिससे आप नेचुरल वे से वेट लूज कर सकते हैं, कि आप एक्सरसाइज को थोड़ा बढ़ाएं और खाना पीने का ध्यान रखें, तली हुई चीजें ना खाएं तो उससे, और मीठा कम खाएं जिससे आपका शुगर भी बढ़े ना। डायबिटीज का भी ध्यान रखें क्योंकि आजकल इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल। सो वो उसको भी ध्यान रखना है कि शुगर बढ़ेगा तो मोटापा बढ़ेगा और आप वेट लूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शुगर का भी ध्यान रखें, और अगर आपको डायबिटीज का शक है तो डायबिटीज के डॉक्टर को जरूर दिखाएं। Thank you, doctor. There's another question. I'm 23 years of female, age of female, suffering from anterior mediastinal mass. What treatment for that and what precaution for it not grow, because I'm suffering from this second time after surgery. So 23 साल की फीमेल है जिन्हें इंटीरियर mediastinal mass कैंसर है और ये एंटीरियर मीडियस्टेनल मास ज्यादातर हम कहते हैं थाइमोमास होते हैं, इसको थाइमोमा कहते हैं, और ये सर्जरी से रिमूव किया जा सकता है क्योंकि इसकी दवाइयाँ ज़्यादा नहीं है। कीमोथेरेपी हम देते हैं, रेडिएशन भी देते हैं इसमें, लेकिन अगर आपके पास मीडियस्टेनल मास अगर आपके शरीर में है
तो आप उसको जरूर उसकी जांच कराएं सबसे पहले, और बायोप्सी कराएं, और एंडोस्कोपिक बायोप्सी भी होती है उसकी, कि आप ईबस कहते हैं, एंडोस्कोपिक ब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड कराएं और उसका जांच करें, अच्छी तरह जांच करें, बायोप्सी भी कराएं। और अगर थाइमोमा है और किस टाइप का थाइमोमा है, B1 B2 उस टाइप का, तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि उसमें हम जितना रिमूव कर सकते हैं उतना करते हैं, और उसके बाद हम रेडिएशन या कीमोथेरेपी दे सकते हैं। पर जांच जरूर कराएं कि ये दोबारा क्यों हो। Right. This question from Ratin Mehra. I want to repeat my question. My father is diagnosed with solitary fibrous tumor metastatic and prescribed with Pazopanirib 400 mg. This is the best possible treatment for this. And what are the cure percentage of this tumor? हाँ, malignant fibrous tumor is a very aggressive type of tumor, तो पैजोपेनिब इसमें काफी अच्छा एक्ट करता है। पर लेकिन अगर सर्जरी पॉसिबल है तो सर्जरी करा लें, और उसके बाद रेडिएशन भी जरूरी है, तो रेडिएशन भी कराना जरूरी है, और फिर पैजोपेनिब पे मेंटेनेंस पे डाल सकते हैं। Thank you so much, doctor. Okay, we're just trying to see a lot of questions in the chat, and people have appreciated a lot for the wonderful insights that you have shared on this. Thank you so much, doctor. Okay. आपने जब कैंसर प्रिवेंशन के बारे में बताया तो उसके ऊपर क्वेश्चन था कि हम एक्टिव स्मोकिंग नहीं करते हैं, बट पैसिव स्मोकिंग बहुत ज्यादा होता है। सो हाँ, ये कैसे? इसके बारे में भी मैं बोलना भूल गया, कि इसके बारे में मैं बताना चाहता था कि WHO की एक स्टडी है जिसमें स्मोकर्स वाइव्स हैव कैंसर, लंग कैंसर, सो दे आर मोर प्रोन टू लंग कैंसर। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हस्बैंड्स को सबको कहना चाहता हूँ कि प्लीज डोंट स्मोक। स्मोकिंग भी कई टाइप्स की है, जैसे फर्स्ट हैंड स्मोक है कि आप जैसे स्मोक कर रहे हैं तो वो धुआं सबके जा रहा है। सेकंड हैंड स्मोक है कि जो पैसिव स्मोकिंग है, कि आप नहीं भी स्मोक कर रहे तब भी धुआं आपके अंदर जा रहा है। अनदर इज थर्ड हैंड स्मोक। कई क्या करते हैं, स्मोक करके और उसको नीचे कारपेट पे डाल देते हैं और वो उसमें से स्मोक निकलता रहता है, दैट इज कॉल्ड थर्ड हैंड स्मोक। सो दैट इज ऑल इक्वली डेंजरस। और जैसा मैंने कहा कि एयर पॉल्यूशन है, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एयर पॉल्यूशन है, जिसमें हमें रहना तो दिल्ली में है, तो एयर पॉल्यूशन तो सहना पड़ेगा। तो लेकिन उसके साथ साथ हम और क्यों पॉल्यूट करें अपनी बॉडी को, सिगरेट पी के, बीड़ी पी के, या अपनी वाइफ्स को क्यों हम हार्म पहुंचाए, या बच्चों को हार्म क्यों पहुंचाए। तो इसलिए ये जरूरी है कि पैसिव स्मोकिंग भी अवॉइड करें। वेरी ट्रू डॉक्टर। हम लोग देखते हैं कि आपने जैसे बताया कि फैमिलीज में पैसिव स्मोकिंग बहुत ज्यादा होती है, या फिर ऑफिस के बीच में जब ब्रेक्स लेते हैं तो हाँ बहुत जी, सारा, हाँ, तो लंच टाइम पे तो भी हमें हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि हम उन सब चीजों को कैसे अवॉइड करें, फ्रेंड सर्कल में होता है। तो हाँ जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑन दैट। एंड thank you, Doctor. With this, we would like to conclude the session, Doctor. And हम generally treatment के काफी efforts डालते हैं treatment के लिए, and but prevention की तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं। और ये आपकी तरफ से हम सबको एक बहुत बड़ा reminder है कि this World Cancer Day हम लोग when we say close the care gap, which is after the cancer has been diagnosed, how do we close the gap to improve the care? But we also should add on this that how do we do the care starting from the beginning कि हमें कैंसर ही डायग्नोस नहीं हो, एंड वो हम खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए और नेशन के लिए सेल्फ केयर की तरफ, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम एक अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं और खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि कैंसर डायग्नोसिस के चांसेस और परसेंटेज रिड्यूस हो जाए। सो थैंक यू, आपने बहुत बड़ा मैसेज शेयर किया इस प्रिवेंशन के ऊपर, एंड राइटली सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
थैंक यू Yes. डॉक्टर के बारे में बताने के लिए एंड न्यूट्रिशन एंड कैंसर की इम्पोर्टेंस के बारे में कि एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन एक्चुअल में कैंसर डायग्नोसिस के और रिकरेंस के चांसेस को भी प्रिवेंट करता है एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू विद अस टुडे ऑन दिस ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे। आई एम श्योर यू आर वेरी बिजी डॉक्टर एंड आपने इतना When I started practice, there was nobody in Delhi. I was the first one to start oncology here in a big way. 1970s. So you can imagine. More than 45 years of practice. Thank you so much, Dr. Pramod Julka, and we wish everybody health and healing. And thank you, Doctor. Yeah. Thank you. We wish all the success to everybody. Thank you so much, Doctor.